Hello students, today we are going to start with your new topic Boolean logic part 1. So in this chapter we will study about development of Boolean logic, binary valued quantities, logical operation, logic function or compound statement, logical operation, and evaluation of Boolean expression using truth tables. So student, let us try to understand development of Boolean logic. So first we will try about what is Booleans. So now Boolean algebra is a form of mathematics developed by the English mathematician George Boole 1815 to 1864. Boole created a system which certain logical statement can be expressed in mathematical terms. Now he created a system, Boole created a system which certains logical statement. Now what are the logical statements? We will study in later. So which are expressed in terms of your mathematical terms. The consequences of this statement can be discovered by performing the mathematical operations on the symbols. Now basic mathematical operation like your addition, subtraction, and these are apply on the symbols. So in 1847 George Boole, an English mathematician, publishes one work that founded symbolic logic. His combination of idea from logic, classic logic, and algebraic resultant that is called a Boolean algebra. In simple words, we can say we can using simple algebra and classical logic. So using a variable and symbol, this is important. Variable and symbols. Boole designed a language for describing and manipulating the logical statement and determine if they are true or not. Now, in Booleans, we generally emphasize on the result whether it is true or false. So now the variable stands for the statement are either true or false. The symbol plus multiplications and dash represent and or and not equivalent. Here is what does it means. Dot represent logical and dot represent logical or and used in the truth tables. So in Boolean logic, we can generally deals with the variables, stands for statement whether it is true or false, and they are represented either plus or into and dash. Now here is plus, minus, or dash or into. So this represent three logic. So this represent about or, not, and. Though the truth tables use T and F for true and false respectively or indicate the statement in sentences, Boolean algebra use as a 1 and 0. 1 stand for true and 0 stand for false. तो आपने देखा कि जब हम ट्रुथ टेबल को हम डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर ट्रू और फॉल्स के लिए हम लोग यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 1 जो यूज़ करेंगे वो ट्रू के लिए यूज़ करेंगे और 0 करेंगे हम फॉल्स के लिए
अब हम बात करते हैं बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी. Now binary means to say two, either 1, either 0 or 1. This represent what your binary numbers. ठीक है. If we are talking about, we have already talked about 1 mean to say true and 0 mean to say false. So now how this quantity will works. As a simple example, consider the two statement: I will be home today and I will be home tomorrow. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट हैं वो कंजक्ट हैं किसी कीवर्ड से, एंड से. अब इसमें बाइनरी के अंदर इसका क्या बनेगा? लेट देन फर्स्ट स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल p, और यू कैन यूज योर ओन सिंगल x और y, एंड सेकंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल q, यू कैन यूज योर ओन symbol, you can use either a or b or p or q or x or y. This depends upon you. So the rule of Boolean algebra can be used to find or the consequences of various combination of these two preposition p and q. अब हमने p और q की क्या देखनी है कि जो पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास कितने यूज हम लोग इसमें करेंगे. तो यहाँ पे देखिए क्लियर बात है कि अगर दो वेरिएबल हैं हमारे पास, ठीक है, कितने दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल के पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे? वो पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे 2n. अब n कितना है? 2 है, तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हुए हमारे पास? 4 इसके पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे. अब 4 में देखते हैं कौन कौन से कम्बिनेशन बनते हैं हमारे. इन जनरल टू स्टूडेंट कैन बी कंबाइन इन वन ऑफ टू वेज. और फर्स्ट में p और q, आई विल होम टुडे और आई विल बी होम टुमारो. एंड सेकंड वी हैव योर p एंड q, आई विल बी होम टुडे एंड आई विल बी होम टुमारो. अब इसको समझते हैं. इसमें क्या होगा कि जब हम p और q की बात करें तो यहाँ पे और लगा होगा, तो और में केस में क्या हो सकता है कि आई विल बी होम टुडे आज भी रह सकता हूँ, या फिर आई विल बी होम टुमारो, मैं कल भी घर पे रहूँगा. अब आई विल बी होम टुडे एंड आई विल बी टुमारो. अब इस केस में क्या है कि मैं आज भी रहूँगा और कल भी रहूँगा. ऊपर वाले केस में क्या होगा कि दोनों में से किसी भी दिन रह सकता है, और नीचे वाले में क्या होगा कि दोनों ही दिन वो घर में रहेगा. सो नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बट कंक्लूजन वी कैन ड्रा इफ p एंड q आर आइदर ट्रू और फॉल्स. तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी इंक्लूड इट कैन बी ड्रान इफ p एंड q बोथ आर ट्रू. In that case what will happens? In that case the combination of p और q is also true. अब ये कैसे ट्रू होता है इसको और हम ट्रुथ टेबल से बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे इसको, ठीक है. That is, if statement I will be home today p is true and the statement I will be home tomorrow q is also true, then combination statement I will be home today or I will be home टुमारो p और q मस्ट आल्सो बी ट्रू. इस केस में क्या होना चाहिए कि दोनों ही जो कंडीशन है वो हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब इसमें क्या है कि लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो देयर आर सम स्पेसिफिक ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ट्रुथ टेबल्स, ठीक है. अब नई टर्म आ गई हमारे पास ट्रुथ टेबल्स. सो अब इसमें ट्रुथ टेबल हमारे पास इसको हम समझते हैं कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास बूलियन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे और उसको हमने किसमें 1 और 0 की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम जितनी पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे एक टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो अब हम इन ऑपरेशन को लर्न करने से पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड लॉजिकल फंक्शन और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है. अब कंपाउंड लॉजिकल फंक्शन में हमारे पास आता है कि लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड एनी ऑपरेशंस दैट मैनिपुलेट बूलियन वैल्यू. अब ऑपरेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे पास बूलियन वैल्यू है उसको हमने मैनिपुलेट करना है, ठीक है. सो बूलियन वैल्यू इज आइदर क्या होगा, आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स. सो इट कैन बी ट्रू और फॉल्स
So they can be also represent as 0, 1 and 0. So here 1 is normally represented as for true and 0 represented for false. So keep in mind, when the value of variable is 1 or 0, it means that it's a true or it's a false. So but it could be other way around. So the basic operations are exponent and we are not. अब यहाँ पे ये जो एंड है, एंड के लिए हम यूज़ करेंगे परसेंट, और के लिए हम यूज़ करेंगे वी, और नॉट के लिए हम करेंगे वार या हम कप्लीमेंट। इन setting these boolean operators are not mixed with the mathematical operation। अब हम इसको क्या करेंगे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस है और स्टार है, जिसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बोलते हैं, इसको मैथ के साथ नहीं लिखना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डील करेंगे किसके साथ, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। हमने पहले कहा कि प्लस का मतलब क्या होगा, हमने पहले भी पढ़ा पीछे, क्या होगा हमारे पास और होगा, ठीक है। एंड इनटू या इसका मतलब होगा हमारे पास एंड। We will avoid these notations to confusing with the addition और multiplication। तो आपने याद ये नहीं रखना है कि हम प्लस यूज़ कर रहे हैं, इनटू तो हम उसको प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। सो लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड एनी ऑपरेशन दैट कैन बी मैनिपुलेटेड ऑन बूलियन वैल्यूज। सो लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड्स द any boolean that can manipulated on the boolean value। So boolean value is either true yes या 1, false no or a 0। So before understanding but a truth tables। So now truth tables is a table which represent all possible values of a logical variables or statement along with all possible result of given combination of the value। अब जो combination हमारे पास रहेंगे, these combination depend upon the variables की how many variables we are using in a Boolean algebra। So logical statement can have only one of the two values, true yes, false no। Now let's we are discussing with a simple example। I want to have a t true false true false false। t is readily available true false true false। अब हम दोनों का जब रिजल्ट देखेंगे ट्रू एंड ट्रू, तो रिजल्ट रहेगा वो क्या होगा, ट्रू, ठीक है। ट्रू और फॉल्स रहेगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू रहेगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स रहेगा हमारे फॉल्स। तो जब हमने दो वेरिएबल लिए हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे पास, कितने बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और ये 4 कॉम्बिनेशन को अब ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ योर वेरिएबल्स। अब इसको हम ट्रुथ टेबल के अंदर यूज़ करेंगे तो हम दो वेरिएबल ले लेंगे, एक्स ले लो वाई ले लो, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेंगे रिजल्ट के लिए, ठीक है, एक्स वाई जेड ले लो, पी का आर ले लो, डिपेंड्स ऑन योर वेरिएबल्स। सो इफ स्टेटमेंट as p and first statement p and second statement q, then result will be p1 true q true, result will be true, and p is 1 q is 0, result is 0। So but if p is true and q is false, then result is false, and if p is 0 q is equal to 1, then result is to 0। if p is equal to 0 q is equal to 0, then result is 0। नो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास सिर्फ एक ही सिचुएशन में ट्रू वैल्यू आ रही है जब p और q दोनों की वैल्यू ट्रू होगी। तो जब ये पॉसिबल होगा कि जब दोनों की दोनों हमारे पास जो कंडीशन जो हैं या स्टेटमेंट जब ट्रू होंगी, तो हम हमेशा उस केस में हम यूज़ करेंगे एंड, क्या यूज़ करेंगे, एंड। सो ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। Then
type of operator, logical operators. So basically we have three type of logical operator. First one is your NOT operators, then AND operators, OR operators, third one is AND operators. अब ये हमारे पास तीन ऑपरेटर जिसके साथ हमने क्या करना है, बुलियन जो एल्जेब्रा है या बुलियन लॉजिक को हम यूज़ करेंगे. अभी हमने नॉट को बात किया, तो नोट को हम बार बोलते हैं या इसको कप्लीमेंट बोलते हैं. या अब जब और की बात करेंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे एज अ प्लस. ठीक है. और जब एंड की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे डॉट. ठीक है. तो इसको बोलते हैं लॉजिकल और, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, और इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट. तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको बार यूज़ करते हैं या प्राइम यूज़ कर लेते हैं, और के लिए हमेशा हम यूज़ करेंगे प्लस. ठीक है. और एंड होगा हमारे पास डॉट. अब इसमें क्या होगा, प्लस का मतलब क्या होगा कि हम एडिशन, ठीक है, पॉसिबल कम्बिनेशन एडिशन के थ्रू चलेंगे. एंड के साथ क्या होगा कि हम उसको इनटू करेंगे. ठीक है. तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज नॉट ऑपरेटर्स इन बूलियन अलजेब्रा. नॉट ऑपरेटर इज अ बूलियन ऑपरेटर्स दैट रिटर्न्स ट्रू, दैट इज क्या है, और वन, व्हेन ऑपरेंड इज फॉल्स 0 एंड रिटर्न फॉल्स व्हेन ऑपरेंड इज ट्रू. अब सिंपल वर्ड में याद रखिए कि जो हमारे नॉट ऑपरेटर है इसको हम कप्लीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं और इन्वर्टर ऑपरेटर भी बोलते हैं, कि जब वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और जब फॉल्स होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ये हमारे पास 0. फिर से कि जब वैल्यू ट्रू होगी तो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर फॉल्स वैल्यू तो रिटर्न करेगा ट्रू. सो एंड ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड योर कम्प्लीमेंटेशंस. द सिंबल इज यूज फॉर योर बार और एक्स प्राइम बी के. इसको हम ऐसे भी है, नॉट को एक्स बार से भी डिनोट करते हैं. ठीक है. और इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट. डैश का मतलब हम यहाँ पे लेते हैं कम्प्लीमेंटेशंस. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 0 बार इज इक्वल टू 1 एंड 1 बार इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0. ठीक है. अब ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर इज योर x और x बार 0 1 1 एंड 0. सो दिस इज ऑल अबाउट कि सिंपल अगर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी तो रिटर्न करेगा 1, और अगर ट्रू होगी तो रिटर्न करेगा ये फॉल्स. देन ऑपरेटर्स. सो इन बूलियन अलजेब्रा ऑपरेटर्स विच डिनोट द ऑपरेशंस कॉल्ड लॉजिकल एडिशंस. आपने ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एडिशन. एंड symbol be used for it is plus. The plus is a symbol used for your OR operators. Thus P plus Q can be read as P or Q. समझ आया ये. जब हमारे पास P और Q होगा तो उसको रीड करेंगे, या अगर हमारे पास X है और ये Y है तो इसको करेंगे X और Y, और उसको हम करेंगे P और Q. प्लस नहीं हम इसको यूज़ करेंगे, बोलेंगे P और Q और X और Y. अब हमारे पास जो पॉसिबल कम्बिनेशन है 0 और 0 इज इक्वल टू 0, 1 और 0 और 1 इज इक्वल टू 1, 1 और 0 इज इक्वल टू 1, 1 और 1 इज इक्वल टू 1. अब इस केस में आपने देखा कि इस केस में क्या हमारे पास कि जब भी हम लोग ये और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो और के केस में क्या होगा कि अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू. ठीक है. और अदर केस में क्या होगा कि जब दोनों की दोनों हमारी स्टेटमेंट क्या होंगी, फॉल्स होंगी, तो उस केस में रिजल्ट मिलेगा फॉल्स. Now truth table for OR operator is we can P Q P or Q or P plus Q. So 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1. Then AND operators. Now AND operator perform an important operation in Boolean algebra called your logical multiplication, and symbol for use operation is dot. And P dot Q will be read as P and Q. So same
The truth rules for AND operation is 0 and 0 is equal to 0, 0 and 1 is equal to 0, 0 1 into 0 is equal to 0, 1 into 1 is equal to 1. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि ये जो वैल्यू रहेगी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ये रहेगी, ये वैल्यू आएगी ट्रू. इसमें क्या रहेगा कि जब हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, ट्रू होंगी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी, पी और क्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू मिलेगा. अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है, इन दैट केस वी विल गॉट अ रिजल्ट फॉल्स. सो ये हमारे पास है कि एक्स बाई एक्स एंड बाई सो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. आपने एक बात देखी कि जब हमने और ऑपरेटर यूज़ किया था, और के केस में क्या था कि जब दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट क्या होंगी, फॉल्स होंगी, तब हमारा रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, अदरवाइज क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा. बट इन केस ऑफ योर एंड ऑपरेटर्स, जब दोनों की दोनों कंडीशनें क्या होंगी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी, हमारे पास ट्रू होंगी, तभी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स. सो नाउ evaluation of your boolean expression using truth tables. ट्रुथ टेबल आपने पढ़ लिया कि लॉजिकल जो है वेरिएबल जो कम्बिनेशन करेंगे वो करेंगे एंड और नॉट. अब एंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के साथ, और को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस के साथ, और नॉट को रिप्रेजेंट करेंगे बार या कप्लीमेंट के साथ. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेरिएबल्स ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, द लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा ए और बी एंड सी. ये अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे ए प्लस बी डॉट सी, नहीं, आप बोलेंगे ए और बी एंड सी. ये 3 वेरिएबल. जब 3 वेरिएबल की बात करते हैं तो इसके जो पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे वो कितने होंगे हमारे पास. इसके पॉसिबल कम्बिनेशन, जैसे हमने 2 वेरिएबल्स थे हमारे पास एक्स और वाई, तो कितने कम्बिनेशन थे उसके, इसमें हमारे पास कितने थे, 4. और जब हमारे पास वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8. और जब हमारे वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16. तो ये डिपेंड करेगा कि वेरिएबल हमारे पास कितने हैं. जब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो हमारे पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, 8. 4 होंगे तो 16. अब हम इसको एवेल्यूएट करते हैं कि हमने इसको वेरीफाई करना है x प्लस x और x एंड y इज इक्वल टू x फॉर ईच x y इन 0 एंड 1, जहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, 0. अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं. ठीक है, 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल कौन से हैं हमारे पास, एक x है, दूसरा क्या है, y है. तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे पास, 4. ठीक है, अब जो 4 बनेंगी, अब 4 के लिए हमारे पास जो है कि अब जो हमारे पास x और y है वो पहली वैल्यू बनेगी कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1. ये 4 कम्बिनेशन बनेंगे. ठीक है, किस केस में, 2 वेरिएबल के केस में, 0 0 0 1 1 0 और 1 1. अब x एंड y, अब हम x और y की 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0. अब 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1. अब ये तो हो गया x और y की. हमें क्या निकालना है, x प्लस एक्स वाई. अब x की वैल्यू ये हमारे पास है, ठीक है, और ये एक्स वाई की ये है. अब इनको हम और कर देते हैं इन दोनों के लिए, ये वाली वैल्यू के लिए. अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है, अब 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. देन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1. ठीक है, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1. तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है. अब जब आपने क्या लिखा कि x प्लस एक्स वाई,
अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे पास, x की। अब ये कैसे देखेंगे, अब ये वाली वैल्यू देखेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये वाली, तो वो दोनों की दोनों वैल्यू की हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है कि x और x and y is equal to x. So in this way we can verify the Boolean logic by using a truth tables. So this is for your practice, x plus y bar is equal to x bar y bar. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x ले लेंगे, y ले लेंगे, पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हो जाएंगे। अब इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, x बार की वैल्यू निकालेंगे और y बार की वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या करेंगे कि x इंटू एक्स बार इंटू एक्स बार एंड वाई बार को हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो वैल्यू x प्लस वाई बार की है वो क्योंकि x बार और y बार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फिर हम लिखेंगे उसका x प्लस वाई का बार ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद x एंड y करके दोनों को हम क्या कर देंगे, इसको बराबर। तो ये हम लोग इसको करेंगे। सो this is all about your Boolean logics. So in Boolean logic what we have ki development of your Boolean logic, Boolean algebra, then different type of statements using in binary values. After that we will study about the logical operators. In logical operator we have study about the and, और एंड नॉट। सो जब हम नॉट की बात करते हैं तो नॉट को हम इन्वर्टरफुल कप्लीमेंट या बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वन को कन्वर्ट कर देगा जीरो में और जीरो को वन के अंदर। जब और की बात करी तो और में होगा कि ए और बी का मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी। तो पॉसिबल कम्बिनेशन में क्या हमें ध्यान दिया कि जब हमारे पास दोनों की दोनों स्टेटमेंट पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, देन इन दैट केस रिजल्ट विल बी false, otherwise result will be true. And in case of your our and operators, this is opposite. So a and b, when both the value are true it will return value true, otherwise either of value is false then it will return the value false. So this is our today's session. Thank you, have a good day.